Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Ready, everyone? Okay. So let's start the class. And now today's topic is optical path. Okay. What is the topic name? Optical path. And I am denoting it with X. Optical path is denoted by X. So what is this optical path? Let's see. Suppose now there is one medium like this. Okay. This is a medium. And this light ray is traveling through this medium. Okay. This light ray is traveling. Let us suppose this distance is small d, and these 2 points are A and B. Means the distance AB is d and refractive index of this medium is mu. Okay. What is this? A medium whose refractive index is mu, and this path length is d in that particular medium. Okay. Now same light ray I am taking. Let us suppose this is the ray which I have denoted with the red line, or else we will take with yellow only. Better, no? Yes, same with yellow. Same ray with yellow color. Okay. Now this ray is traveling through vacuum. There is no medium, you see. This ray is traveling through vacuum. I am taking 2 points. Okay. How I took 2 points in some medium, likewise only I am taking 2 points in a vacuum also. Right. This point is A dash, this point is B dash, and this is in a vacuum. Okay. And this is in a medium. One particular medium is there whose refractive index is mu. Now you are having 2 distances traveled by light ray. Okay. See here. So one is AB. This AB is what? AB is nothing but real path or geometrical path. Real path or geometrical path in particular medium. एंड ये जो A डैश B डैश है ना, A डैश B डैश, ये क्या है? ऑप्टिकल पाथ. A डैश B डैश क्या है? ऑप्टिकल पाथ. So how to find this optical path length? Let's see below. Okay. So what is this optical path length? See here. If a light ray travels, a path length d,
जैसे कि मैंने आपको दिखाया ऊपर, अ पाथ लेंथ d इन अ मीडियम, ऑब्वियसली ये मीडियम है, इन अ मीडियम विथ स्पीड v, then time taken by it will be, आपको पता है v इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इंप्लाइज, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टाइम t इज इक्वल टू d बाई v। अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? क्लियर? ओके, this we got time, means this light ray will take time t to travel this d distance in that particular medium. Now in a vacuum, in this medium, this light ray has velocity, how much velocity? V. In a vacuum you are having mu is equal to 1, and here you are having velocity v is equal to c, in which medium? Vacuum. है कि नहीं? Yes. In this medium you are having refractive index mu, velocity is v, but here in vacuum velocity of light is equal to c. Yes or no? Yes, that is c. तो क्या मैं अब ऑप्टिकल पाथ का ऐसे लिख सकता हूं, therefore, ध्यान से देखो, therefore optical path length which we are going to denote with x, कौन सा डिस्टेंस है ये x, ये वाला, यहाँ पे देखो, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना वैक्यूम में, वो है आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ, वो कितना है, x है। नाउ दिस ऑप्टिकल पाथ लेंथ x इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू टाइम। यस और नो? बिकॉज यहाँ पे भी क्या होगा, c इज इक्वल टू x बाई टी होगा, वेलोसिटी है ये भी, है ना, तो ये डिस्टेंस बाय टाइम होगा। यस, ओके। अब x इज इक्वल टू सी टी है, बजाने वाले नहीं, x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो अब ये c एज इट इज रखता हूं, यस आई केप्ट एज इट इज, and at the place of this time can I substitute this d by v? Yes, I can substitute d by v. कोई डाउट इसमें, कोई संदेह? राइट, ओके। अब देखो x इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, c बाई v इंटू डी, देयरफॉर c बाई v क्या है, c बाई v क्या है, c बाई v इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। Time in both is different, no sir? No, we are taking same time, distance traveled by light in a same time. So that's why I have not denoted distance same. Here is time same. Okay, I will denote here particularly for you. यहाँ पे टाइम t ही है और यहाँ पे भी टाइम t ही है. The distance traveled by light ray in a same time as that of in vacuum, that is what your optical path. Okay, वो मैं लिखने वाला हूं, रुको एक मिनट तो रुको, पहले सुनो तो सही। अंडरस्टूड? तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू म्यू इंटू डी, सही है? कोई डाउट है इसमें? क्या लिखा है देखो मैंने, x इज इक्वल टू
म्यू इंटू डी, सही है? यस, प्लीज आस्क योर डाउट्स। मेहर माधुरी, टाइम इन बोथ इज डिफरेंट। नो, मैंने बोला ना अभी टाइम तो सेम है। ओके, और कोई डाउट? ओके, राइट। तो अब ऑप्टिकल पाथ की जो डेफिनेशन है वो हम कैसे लिख सकते हैं बाबा? कोई है बाबा जो बोल सकता है बाबा? यस, कोई बोलेगा मुझे कि क्या होगा ये ऑप्टिकल पाथ का डेफिनेशन? यस, कोई है जो बोलेगा ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंट? यस, हु विल टेल मी? देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये देखो, मैं जो लिख रहा हूं वो सही है क्या? चेक करो। यस, एनीवन? distance traveled by the light ray in a medium when refraction occurs। नहीं नहीं, रिफ्रैक्शन तो नहीं। कोई है जो बोलेगा the distance in which vacuum contains same number of wavelengths? The distance in which vacuum contains same number of wavelengths, ये बोल रहा है। ओके, the distance traveled by the light ray in a given medium is equal to the distance traveled by it in a vacuum times the refractive index। ये भी सही है अमोक का। ओके, हाँ, तो मैं ऐसे लिखता हूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट रे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट रे इन अ वैक्यूम, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट रे इन अ वैक्यूम इन अ सेम टाइम, distance traveled, how you can say distance traveled in that medium, particular medium, can we say like this? Or else the distance traveled by the light ray in a given medium is equal to the distance traveled by it in a vacuum times the refractive index, ये भी बोल सकते हैं। ओके, चलो कैसे लिखेंगे देखो, पहले ये कॉपी करो, चेक करते हैं। यस, वी कैन राइट लाइक दिस। Sir, done, sir. Noted. ओके, राइट। तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे ऊपर। Sir, another page, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं, देखो ऑप्टिकल पाथ एक्स, it is distance और म्यू टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलेंगे, म्यू टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट मीडियम। ठीक है, it is mu times distance traveled in that medium, so that is x is equal to mu into d। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको? कोई डाउट है इसमें? yes, can I say like this? And that is x is equal to, if mu is the refractive index of that particular medium, into d,
सीधा हो जाएगा x इज इक्वल टू म्यू इंटू डी। ओके राइट। नेक्स्ट वन देखो, जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है नेक्स्ट वाला, वो क्या है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। वो क्या होगा? बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ये जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है मैं डिनोट करूंगा डेल्टा एक्स से। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है क्या? देखो, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग, रुको। हाँ देखो, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मीन्स ये जो ए बी है और ये जो ए डैश बी डैश है, उन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। क्या करना है? ये जो ए डैश बी डैश है और ये जो ए बी है, ये एक डिस्टेंस है वैक्यूम का, एक डिस्टेंस है मीडियम का, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको आ जाएगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो चलो देखो ये कैसे लिखेंगे। देखो पहले डेफिनेशन, द डिफरेंस द डिफरेंस द डिफरेंस in a distance difference in a distance traveled by light in vacuum and in a medium in same interval of time, in same interval of time, is called optical path difference in that medium, है ना? ओके तो कैसे करेंगे देखो, ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए डैश बी डैश माइनस ए बी। अब ए डैश बी डैश क्या है अपना? ए डैश बी डैश क्या आ गया देखो, ए डैश बी डैश तो एक्स है ना? एक्स कितना आ गया? म्यू इंटू डी आ गया, है कि नहीं? यस। तो अब ए डैश बी डैश अपना है म्यू इंटू डी, आप ये डायग्राम में देख सकते हो, सही है ना? म्यू इंटू डी, यहाँ पे देखो, और उसके बाद ए बी भी अपने को मालूम है कितना है, डी। तो अब अगर मैं इसमें से डी कॉमन ले लूं तो क्या होगा? म्यू माइनस वन इंटू डी। दिस इज व्हाट डेल्टा एक्स एंड दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। दिस इज व्हाट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। क्लियर है? यस यस यस, x2 माइनस x1 जो भी है, यस ईशान, यस। दोनों का डिफरेंस ले लो। कुछ डाउट है इसमें? ये आप पीछे का डायग्राम देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये x है, ये d है ना? तो म्यू डी माइनस डी करो, यू विल गेट द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। हो गया? क्लियर है? अब आगे Yes, आगे sir. देखो, आपको ये जो किंगफिशर मालूम है आपको? किंगफिशर, डू यू नो किंगफिशर? डू यू नो और नॉट? यू कैन स्पीक आउट। Yes, sir. ओए बियर कादुरा, हे बाबू ए बियर कादुरा, bird I am talking about, not beer, bird and advanced level ఏంటిదిరా? kingfisher bird రా, see, so when it is catching fish is inside water, yes or no? Obviously. And
Kingfisher is where is Kingfisher? In the air. Okay. हाँ, ओके, तो छोड़ो जोक्स अपार्ट। तो अब वो जो बर्ड है, वो बर्ड फिश को पकड़ेगा, राइट? तो how nature is playing game with each other, you see, particularly with fish and kingfisher, due to refraction, whatever the actual height of fish is there now, bird will not see that, understand? उसको लगेगा कि थोड़ा सा नीचे है ना? और फिश को क्या लगेगा? बर्ड इज लिटिल बिट अप। तो एक दूसरे के साथ ये पॉलिटिक्स करते हैं, कैसे रिफ्रैक्शन होता है और फिर भी कैसे पकड़ता है, वो उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे। इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे अपैरेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या करेंगे? अपैरेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन पहले पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे। ये हो गया, अंडरस्टूड सबको? वेरी इजी, जस्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स आपको समझना है, राइट? हो गया ना? यस, ओके, गुड। अब देखो, apparent shift of an object due to refraction. Apparent shift of an object due to refraction. Once previous page, okay, ले लो। हो गया? सर द किंगफिशर कैचेस द फिश ड्यू टू रिफ्रैक्शन। नहीं नहीं नहीं, उसको भूख लगती है इसलिए पकड़ता है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं। वो रिफ्रैक्शन की वजह से क्यों पकड़ेगा रे? वैसे नहीं रे, हाँ? उसको थोड़ा सा, वो क्या होता है हम देखेंगे आगे, रुको, मैं तुम्हारा डायग्राम के साथ बताता हूँ कैसे होता है वो। फिश कैसे देखता है, वो किंगफिशर कैसे देखता है, वो देखेंगे, रुको। हाँ, वेट, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको, प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे हम। तो फिश कितना दूरी पर रहना चाहिए, बर्ड कितने दूरी पर रहना चाहिए, या तो बर्ड को फिश कितना हाइट पे दिखेगा, डेप्थ पे दिखेगा, जो भी है, मतलब फिश को हाइट पे दिखेगा और बर्ड को डेप्थ पे दिखेगा, वो सब हम प्रॉब्लम के साथ देखेंगे। एक मिनट रुको, पहले ये पढ़ो, apparent shift of an object due to refraction। ठीक है, हाँ, ओके, ओके। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो मीडियम लेते हैं। लेट्स टेक टू मीडियम। किधर बनाओ डायग्राम? इधर बनाओ, इधर बनाओ, ओके, इधर बनाएंगे या इधर बनाएंगे? चलो इधर बनाता हूँ, राइट साइड को। दिस इज अ डेंसर मीडियम, ओके। और कौन सा लेंगे? दूसरा वाला लेंगे हम लोग। ये लेता हूं मैं पिंक कलर, ये तो बहुत फेंट है, ये नहीं चाहिए, ओके। व्हाइट लेता हूँ, ठीक है। ये अभी देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये अभी दो मीडियम है, एक है व्हाइट वाला और एक है ब्लू वाला, स्काई ब्लू, है ना? राइट, एंड नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे कहीं पे तो ऑब्जेक्ट है इधर, ये काला लेता हूं मैं, काला काला ऑब्जेक्ट है, ब्लैक वन, राइट।
और विच वन इज डेंसर मीडियम एंड विच वन इज रेरर मीडियम, वो भी हमें बोल देता हूं. नाउ दिस वन, ब्लू वन इज डेंसर मीडियम एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1. व्हाइट वन इज स्काई एंड ब्लू वन इज वाटर. व्हाइट वन, ओहो, ओके, गुड गुड गुड, वैसे भी बोलो, ठीक है. हाँ, ओके, चलेगा, हाँ, जो भी है, राइट. तो ये डेंसर है, हमें कुछ लेना नहीं है, पानी ले लो, ग्लास ले लो, जो भी है, कंपैरिजन विद, लेकिन ऊपर का रेरर, नीचे का डेंसर. तो ये है आपका मीडियम rarer, that's why this is rarer and its refractive index is mu2. Now first ray that is coming from this point is going like this, undeviated. When it is going straight like this, now I am taking another ray. Is it visible or shall I take red one is more visible? Yes, yes, I think this is more visible, right? Red one I will take. Okay. Now this is first ray and this is another ray which is incident at some angle. Then after refraction it will go away from the normal or towards the normal. If I am drawing one normal here, it will go towards it will bend towards the normal or away from the normal, away from the normal, because it is rarer medium. तो ये जाएगा ऐसे. Yes, it will go like this, away from the normal. Yes or no? Yes, 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 right. Okay. तो इसलिए मैंने यहाँ पे अवे दिखाया है, देखो. अब मैं क्या लेता हूं, ये जो एंगल है ये है θ1 और ये जो एंगल है ये है θ2. ठीक है, और ये रे ऐसे जा रहा है, देख सकते हो आप. नाउ if I will complete this with a dotted line, this ray will meet somewhere here. Yes, है ना? Yes or no? Like this extended ray. Okay. And now let us assume that this angle is θ0. How much this angle is? θ0 or θ2? बोलो बोलो, कितना होगा ये? ये अगर θ1 है तो ये भी θ1 होगा, है कि नहीं? ये एंगल तो θ1 ही होगा. And I am giving this point as a O. This one is A. This point name as A. And this point is B, which is at this interface. और यहाँ पे जो आएगा वो है I, ये पॉइंट. ओके, अब थोड़ा सा रुकिए, अब देखिए क्या होता है. यस, θ2. यस यस, वेट 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 फॉर θ2. यस यस, वेट वेट. अब रुको, पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री करेंगे. अब इसमें अगर मैं साइन θ1 ले लूं तो क्या आएगा, देखो एक बार. अगर मैं साइन θ1 लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये भी एक ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये ऐसे, कौन सा ट्रायंगल? OAB. तो मैं लेता हूं, देखो, इन ट्रायंगल OAB, साइन ऑफ θ1 is nearly equal to tan of θ1, है ना, है कि नहीं? तो अगर मैं इसका साइन θ1 ले लूं तो क्या होगा,
अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाय ओ बी। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये है एट रियल डेप्थ, ये जो है ये रियल डेप्थ है ना इसका, ये जो ओबी है वो रियल डेप्थ है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है इधर, रियल डेप्थ। समझ में आ रहा है, ये क्या है, रियल डेप्थ। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है डेंसर मीडियम में, राइट। अब इसके बाद जो साइन थीटा 2 है वो क्या होगा, क्योंकि ये एंगल जैसे कि ये थीटा 2 है, ये भी क्या होगा, थीटा 2। तो अगर मैं साइन थीटा 2 ले लूं, सिमिलरली साइन ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाय आई बी, है ना, चेक करो, राइट। कॉल दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1, कॉल दिस एज ए इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट, एनी डाउट प्लीज टेल। AIB is equal to theta. Yes, yes, I wrote. Yes, any other doubt? Clear है? Okay. AB by IA क्या है रे ये? अब्बा by अब्बा, या कुछ गलत लिखा है क्या? बोलो तो सही, क्या बोल रहा है, क्या है ये? AB by IA, AB by IA किधर है? AB by IA, हाँ, ये हाइपोटेनस की बात कर रहा है। लेकिन सुनो, यहाँ पे जो है हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो tan थीटा है ना, tan थीटा 2, ये सही डाउट है, वेरी गुड। हमने ऐसा क्यों लिया है एक बार देखो तो सही, क्योंकि जब sin थीटा 1 मैंने लिखा है वो नियरली इक्वल टू tan थीटा 2 होता है, और ये जो tan थीटा का फॉर्मूला है ना वही हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई आपको sin थीटा 2 भी कैसे आ रहा है, AB बाई क्या आ रहा है, IB, क्योंकि ये tan थीटा का फॉर्मूला है। समझ में आया, इसीलिए आपको ये जो आ रहा है sin थीटा 1 और sin थीटा 2, although I wrote but it is nearly equal because it is very very small, and that's why I have written like that, that is opposite by adjacent, है ना। सही है क्या, सही है, सही है, समझ में आया तुम्हारा डाउट? यस यस यस, गुड। कोई है और जो डाउट पूछा है? हाँ वर्षित, यस, आई थिंक यू गॉट योर आंसर नाउ, राइट। हाँ देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2। अज्यूम करो कि ये tan थीटा के फॉर्मूलाज है, क्यों, क्योंकि ये थीटा 1 इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये आ जाएगा ए बी बाई ओ बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए बी बाई आई बी। तो अब चलेगा ये आई बी ऊपर और ये ए बी हो गया कैंसल, इसे भी कैंसल्स विद दिस, एंड ये जाएगा ऊपर, तो ये होगा आई बी आएगा क्या, चेक करो एक बार, आई बी बाई ओ बी आएगा, सही है ना, यस, आई बी बाई ओ बी। सही है, यस यस आमोग, यस यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, यस राइट। तो अब देखो, ये जो साइन थीटा 1 है और साइन थीटा 2 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई बी क्या है अपना, आई बी ये अपेरेंट डेप्थ है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये अपेरेंट डेप्थ, ओके। तो ये मैं इसको बोलता हूँ अपेरेंट डेप्थ, क्योंकि हमें वैसे लगेगा, अगर आप पानी के ग्लास में एक कॉइन रखो, बकेट में वो आप कॉइन रखो, व्हाट यू विल फील दैट दैट इज लिटिल बिट अप, और ये जो ओबी है वो क्या होगा, रियल डेप्थ। थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से सुनो, दिस इज वेरी बेसिक, ऑलरेडी यू माइट हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, बट
यहाँ से आगे आपको बहुत सारा मिलेगा, कुछ कुछ मिक्सिंग, तो अच्छे से समझने की कोशिश करो। राइट, गुड, ये हो गया। अभी अपने पास एक इक्वेशन है, वो क्या है? sin थीटा 1 बाय sin थीटा 2 इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। ओके, ये एक इक्वेशन आ गया। चलो आगे चलते हैं। नाउ एट पॉइंट ए, at point A, at point A, can I use Snell's law? Using Snell's law, using Snell's law, ये है mu1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, mu1 sin of theta 1 is equal to mu2 sin of theta 2. Therefore, sin of theta 1 divided by sin of theta 2 is equal to mu2 by mu1. अब ये अपना दूसरा इक्वेशन है कि नहीं? दोनों में साइन थीटा आ रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्ट? यहाँ पे कंक्लूसिव पॉइंट क्या लिखूं? बोलो बोलो। मैं लिखता हूं mu2 by mu1, therefore mu2 by mu1 is equal to apparent depth by real depth. चेक करो, मुझे बोलो सही है क्या? जो हमने किया है वो सही है? किसी को कोई डाउट? यस, apparent depth by real depth. ओके ओके, राइट, अंडरस्टूड, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ेंगे। यस, राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज ले लूं? हो गया सबका? ओके, अब यहाँ पे देखो, जो नेक्स्ट पेज पे मैं ले रहा हूं, आप लोग डायग्राम में देखो एक बार। इफ यू हैव ड्रॉन ऑन द नोटबुक, ये देखो, BI is what? Apparent depth. BO is what? Real depth. यहाँ पे हमें दो पॉइंट मिलते हैं। पहला है रियल डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा? BO और OB, या तो BO ले लेते हैं, है ना? उसके बाद अपरेंट डेप्थ क्या होगा? अपरेंट डेप्थ मतलब हमें वैसा लगता है कि ऑब्जेक्ट वहां पे है, वो क्या है? BI। ये क्या है? BI, ठीक है। नाउ आई वांट शिफ्ट। शिफ्ट मीन्स व्हाट? हाउ मच that object has displaced, means appeared to displace. तो अगर मैं शिफ्ट फाइंड आउट करूं तो क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? शिफ्ट इज इक्वल टू, बोलो बोलो, शिफ्ट क्या होगी? शिफ्ट क्या होगी? शिफ्ट होगी ये, कौन सी? ये वाली। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? BO माइनस BI, BO माइनस BI, देखो एक बार, BO माइनस BI विच इज इक्वल टू क्या होगा? रियल डेप्थ, माइनस अपरेंट डेप्थ। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, यू विल गेट हाउ मच इट हैज शिफ्टेड, राइट? यस, BO माइनस BI, यस। अब रियल डेप्थ क्या है? बोलो बोलो, रियल डेप्थ आपको क्या मिल गई है? लेट अस कीप इट एज अ रियल डेप्थ ओनली, रियल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट? mu2 बाय mu1 इनटू रियल डेप्थ। इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूं, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू
mu2 by mu1 into real depth, है ना, RD दिख रहा है क्या, छोटा सा लिखा है, apparent depth is equal to mu2 by mu1 into real depth, ये इधर ट्रांसफर करो। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख दूं वही mu2 by mu1 into real depth, read depth नहीं, real depth, यस, तो ये है रियल डेप्थ। अब अगर मैं इसमें से रियल डेप्थ कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस mu2 बाई mu1 मिलेगा, ये होगा अपना शिफ्ट। शिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस mu2 बाई mu1, ठीक है, क्लियर है। ये है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा, mu2 बाई mu1, याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं, आप जरा एक बार इसको सॉल्व तो करो, ठीक है। चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम, बहुत छोटा है, हिंट भी दूंगा, आप सॉल्व करके मुझे भेजो। एन ऑब्जेक्ट लाइज, एन ऑब्जेक्ट, इसको प्रॉब्लम बोलेंगे, है ना, तो इधर मैं लिख देता हूं, छोटा सा प्रॉब्लम है। इसी के ऊपर, एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, 100 centimeter inside water, that is refractive index is given, how much, that is 4/3. It is viewed from air, it is viewed from air nearly normally, find apparent depth of object, find apparent depth of object, ये है आपका प्रॉब्लम, आप इसको ट्राई करो। अपरेंट डेप्थ ऊपर से मुझते हैं, नीचे से मुझते हैं, गिनते हैं ऊपर से, ठीक से देखो, सॉल्व करो, नियरली नॉर्मल इंसिडेंस है ये। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, टुमारो वी विल सी दिस क्वेश्चन, एंड नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, आप पहले ये प्रॉब्लम ट्राई करो। यस Amog, you have to change your answer little, you just think over it and send me again. Yes Manikanta, you are right. Yes, yes, whatever you are saying, that is shift. Yes Amog, right, now you are right. Yes, do it. Okay, so let's stop here, bye.